Good evening, all of you. Welcome to the session, and you must be aware of the purpose of this session. So, as you know that prelims is over and all of you must be preparing for mains. And I am getting a lot of mails like how to approach answer writing. So I thought we will have one interactive session. Since Zoom meeting is for 40 minutes, so first of all, I would like to take your questions. After that, I have prepared certain PDFs with respect to what is UPSC's expectations, some common questions which students keep on asking. What is the difference in discuss, evaluate, critically evaluate, analyze? What should be the approach of answer writing? As such, UPSC itself has published a document which says that, which tells about what are the common mistakes a student do in the exam. So we will also just have a glance on that common mistake. Then I have a copy. We have conducted our test series. We have a copy of one student. I will evaluate the answer of that student. I don't know whether he has written the right answer or the wrong answer. Then I will show my approach with respect to answer writing. So after that brief description, fine, which will be around 20 to 30 minutes. I hope you have that much patience, because these are certain things which trouble us unnecessarily. Now, all those who are preparing for mains at this point of time, always have this, like, if we have certain notes, like in political science, at least students feel if I'll go through that notes, I will be able to tackle the questions. But GS is so vast. अगर every person here is, I think, committed to do hard work, तो hard work पर lesson देने का कोई ज़रूरत नहीं है. बट आज ये बहुत बड़ी सहूलियत होती कि हमारे पास 5-6 रजिस्टर्स होते और हम हर सेक्शन को उससे पढ़ सकते. आई विल नॉट डिस्क्लोज द एग्जैक्ट मार्क्स, बट अगर हम टॉपर्स के मार्क्स देखें तो जीएस का रोल बहुत ज़्यादा है. ओवरऑल ऑप्शनल्स के मार्क्स को कम किया गया है और जनरल स्टडीज़ के मार्क्स पर बहुत ज़्यादा फोकस है. तो जनरल स्टडीज़ का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रिपरेशन अभी हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों को यही है कि बस जनरल स्टडीज़ करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स और स्टैटिक उसका इंटीग्रेशन है, क्वेश्चंस का यू विल हैव टू डू द एनालिसिस. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच आई हैव tried to collect, and I wanted to share this information with the students. So what I want, that before I start, if you can tell me about your specific questions, I will first take those specific doubts, then I will go with my own discussion, and after 40 minutes you can rejoin for the Zoom session. Fine. iPhone, please discuss the underperformance of PSIR. See, this session is only for general studies. It is not for PSIR, and anyway there is no underperformance. Performance is always relative. The number of students selected remains constant. The ranks have actually improved. It is not your absolute marks, it is your comparative marks that matter. So don't have this confusion. How to cover general studies too? The best thing to cover general studies is at least give 1 hour and analyze the questions so that things are clear. What is happening is that earlier the importance of international relations was less, but now they have increased. Earlier, governance was very, very important. Governance portion is still important. Now, in governance, the basic problem is you do not have
अ टेक्स्ट जहां से हम गवर्नेंस के सारी चीजें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि पहले बहुत ज्यादा लॉट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स ऑन करंट आ रहे थे, लेकिन लास्ट 2 ईयर से पॉलिटी में जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लस पॉलिटी में करंट भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो व्हाट इज माय व्यू कि सिंस यू हैव ऑलरेडी डन प्रीलिम्स, तो आपने बेसिक काम कर रखा है, तो हैव दिस मेंटेलिटी दैट आई एम हाफ प्रिपेयर्ड। नाउ पॉलिटी के करंट पोर्शंस को करना है। पॉलिटी के करंट पोर्शंस कैसे करने हैं? सिलेबस के टॉपिक, सपोज इफ आई टेक स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल डू सेक्युलरिज्म रिपीटेडली क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। इफ आई गो टू part 1 of the constitution, union and its territories, the expected question will be on union territory status of Jammu and Kashmir, or the status change in the status of Jammu and Kashmir. Topic number 3, citizenship, there is going to be a question on what are the controversies related to the Citizenship Amendment Act. So similarly as 0 hour, question hour, there can be a question on effectiveness of parliamentary democracy and its performance in the country. So you should be able to imagine like what are the probable questions. Nobody can prepare the entire syllabus, but you have to, in order to take edge, you have to be smart कि हमारे इस साल के probable questions कौन से हैं. Those probable questions we will do first. तो जैसे टेस्ट सीरीज, ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें बहुत सारे अपने क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो वो इसी तरीके से बनाया गया है कि इस साल के जितने भी करंट इश्यूज हैं उस पर आपको इंफॉर्मेशन हो जाए. अब इतने सारे जो एक्शंस हैं जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है या जीएसटी कॉम्पनसेशन है या यूनिफॉर्म सिविल कोड है, नाउ दीज आर इवन जम्मू एंड कश्मीर, दीज आर सच अ कंट्रोवर्शियल इश्यूज. लेकिन वी if you see most of the articles, what you will find that they are very much critical of the government, but in our own approach we cannot write in that way, but we cannot write absolutely like the way you can say in favor of government. So how smartly are we going to tackle these type of the controversial issues? So what I feel कि जो टेस्ट सीरीज में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने किए हैं, अगर दैट ऑल्सो समबडी डज, नथिंग विल बी बियॉन्ड दैट, और वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है किसी और के लिए इससे ज़्यादा प्रिपेयर करना. सो दैट इज़ अ वे यू कैन प्रिपेयर योर GS2. हाउ मेनी डेज वी कैन सबमिट टूडेज टेस्ट, वो सारा जो चीज़ें हैं आई थिंक यू कैन सबमिट इन 2-3 days. हमारे कोर्स मॉडरेटर यहाँ पर हैं राहुल तिवारी, वो इन चीज़ों को बता देंगे. मेरे को टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस मत पूछो, मतलब प्रोसीजरल क्वेश्चंस नहीं पूछो. अभी मेंस के लिए जितने टाइम है उस समय हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो बाकी से हमको एज मिल जाए. तो मेरे हिसाब से अब ये समय है जब हमको चीज़ें याद करनी चाहिए. अब ये समय नहीं है कि हम चीज़ों को समझें और हम चीज़ों को नोट्स बनाएं, लेकिन याद करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हम क्या चीज़ याद करें, हम क्या कंटेंट. आंसर लिखना और लिखते जाना इम्पॉर्टेंट नहीं है. जब तक कि कोई इंसान ऐसा हो जहाँ पे आप गाइडेंस भी ले रहे हो तो वो इंसान कुछ बता भी तो पाए. मैंने why I have organized this session because मैंने बहुत सारे आंसर्स रिव्यू करे, बहुत सारे लोग जो कहीं कहीं आंसर्स बनाते हैं या इस तरीके से रिव्यू करे, तो क्या समझ में आया कि लोग क्वेश्चंस तक को समझते नहीं है. कोई भी कंटेंट दे देना आंसर है नहीं, आंसर की कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं. जस्ट अगर हम कुछ फैक्ट्स, जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिए सारे फैक्ट्स हमने लिख दिए, तो क्या वो अच्छा आंसर बन जाता है? कोई एक इंग्रेडिएंट्स है, हमें कोई डिश बनाना है तो सारे इंग्रेडिएंट्स घर में लाके रख दोगे तो क्या वो अच्छा आंसर बन जाता है? ऐसा नहीं है. आंसर में एक हार्मनी होनी चाहिए, आंसर का एक फ्लो होना चाहिए, आंसर में एक
आंसर ही ऐसी चीज है ना जहां से हम एग्जामिनर को बांध के रख सकते हैं। एग्जामिनर हमें तो देख नहीं रहा है, तो आंसर राइटिंग, आंसर क्या है, वो दिल से लिखना होता है। आंसर राइटिंग क्या, ह्यूमन माइंड जो है वो पूरा साइकोलॉजिकल गेम है। हम जो लिखे वो इंसान शुड फील इंटरेस्टेड इन रीडिंग ऑल दीज थिंग्स। तो सबसे पहला अभी क्या है, हम क्या चीज पढ़ें। पहला चीज तो हम पढ़ें क्या, इस समय का टाइम केवल आंसर लिखते जाएंगे और हमारे पास कंटेंट नहीं होगा, उसका भी तो कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज है हम क्या पढ़ें। तो प्रीलिम्स का प्रिपरेशन एक्सटेंसिवली करो, लेकिन मेंस का प्रिपरेशन सेलेक्टिव करना है। फोकस आपको जनरल स्टडीज पर बहुत ज्यादा करना है। नेक्स्ट मैम, हाउ टू अप्रोच सेक्शंस ऑफ GS1 लाइक वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, यू हैवंट कवर्ड येट। अगर आपने अभी कुछ नहीं किया है तो अब बहुत डेप्थ में जाना कोई उसकी स्मार्टनेस नहीं होगी। तो बेस्ट है मेंस का प्रिपरेशन हमेशा टेस्ट सीरीज के थ्रू ही करना चाहिए, क्योंकि जो भी टेस्ट सीरीज कर रहा है, इतना बड़ा सिलेबस है ना, हर इंसान अपने एक्सपीरियंस और समझ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहा है। तो पहले आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर लीजिए, मिनिमम हर एरिया के 20-30 क्वेश्चंस कर लीजिए जो रिपीटेडली आते हैं। क्वेश्चन एनालिसिस से उससे हमें फायदा मिलता है। अनसर्टेन चीजों की ओर कम ध्यान देना है। जो चीज अनसर्टेन है, जो चीज सर्टेन है, जिसमें आई हैव एन एडवांटेज, आई मस्ट कंसोलिडेट दैट गेन। What about the ones who are writing mains for first time? Do you think it is a right approach to start answer writing from the first month without decent preparation? पहली बात है, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है उसकी तो बेस्ट सिचुएशन है। ठीक है, सक्सेस रेट फर्स्ट अटेम्प्ट वालों का बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट है कि यूपीएससी में यू विल नेवर गेट दिस फीलिंग कि नाउ माई प्रिपरेशन इज कंप्लीट। दैट फीलिंग कैन नेवर कम। नाउ things cannot happen according to the way we choose, but you have to take the things। तो आज के टाइम में अब हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं कि अब हम बैठ के पढ़ें। जो चीज हमें पहले करनी चाहिए वो अब हम नहीं कर सकते। तो आज के टाइम में क्वेश्चन आंसर राइटिंग अप्रोच लेकर के ही चलना है। आंसर राइटिंग ही लर्निंग है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो आंसर राइटिंग तो फर्स्ट है। पढ़ो कम, कम पढ़ना से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम सेलेक्टिवली पढ़ सके, और आप जिसने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं मेंस के, तो वो अभी 2 महीने में क्या पढ़ लेगा? तो अब उसको तो पता ही है कि उसकी सिचुएशन क्या है, तो उस पे हम बेस्ट क्या कर सकते हैं। बेस्ट है कि हर सेक्शन के 30-40 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो, याद करो, उसको लिखो। विदाउट प्रैक्टिस आप लिख नहीं पाएंगे, और लिखना एक साथ आएगा नहीं, चाहे हम जितना इंसाइक्लोपीडिया रट लें। हम नहीं लिखेंगे तो हम एग्जाम में लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कोई कहता है मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, कोई कहता है मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। जो लास्ट अटेम्प्ट वाले हैं या थर्ड अटेम्प्ट वाले भी हैं, पहली बार जो कुछ हम पहले पढ़ते हैं वो भी भूल जाते हैं। नेक्स्ट है कि इतनी सारी नई चीजें आ जाती है, तो सारे लोग एक लेवल पे आ ही जाते हैं। और यस, आंसर राइटिंग करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग के लिए, बिना आंसर राइटिंग, अभी तुम लोग जब क्लासेस एकदम स्टार्ट करते हो तब आंसर राइटिंग करते हो, जब कुछ पता नहीं होता है। आंसर आप तब भी लिख सकते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो में, जब आपको उस कंसेप्ट का कुछ भी नहीं पता है। जैसे डीकोलोनाइजेशन आ गया, बट आपने पॉलिटिकल साइंस में इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, नॉलेज का इंटीग्रेशन करना भी आना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले तो बेस्ट हैं, क्योंकि जो सेकेंड अटेम्प्ट वाला है वो तो ऑलरेडी, मतलब एक फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका माइंड एकदम फ्रेश रहता है, मोटिवेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है, किसी अटेम्प्ट को तो कैपिटलाइज करना होता है। हाउ टू मैक्सिमाइज मार्क्स इन एथिक्स? मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में मैक्सिमाइज करने के लिए बेसिक्स पढ़ना है। अगर आज तक तुमने एथिक्स पढ़ा ही नहीं, कई बच्चे प्रीलिम्स के बाद के लिए छोड़ देते हैं, तो अभी तरीका टेस्ट सीरीज के अलावा कोई तरीका नहीं है।
देखो, गुड, PSIR पे क्वेश्चंस मत करो, उसके लिए हम एक दूसरा सेशन करेंगे। GS3 गॉट लेस मार्क्स, तो GS3 गवर्नेंस ऐसे टॉपिक्स जो बच्चे करते नहीं है प्रीलिम्स में, जिसको हम प्रीलिम्स टाइम तक नहीं करते हैं, तो ऐसे ही पोर्शंस को फोकस करना है। जैसे अब ये टेस्ट सीरीज है, इसका मेन पर्पस क्या है? प्रैक्टिस तो करो, लेकिन आज के समय में कौन से टॉपिक मस्ट हैं, उनको कैसे टैकल करना है, इसीलिए इस टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने क्लासेस रखे हैं। तो GS3 में हमेशा समझो यूपीएससी का परफॉर्मेंस कैसा होगा, कंपैरेटिव परफॉर्मेंस होगा। बाकी के कंपैरिजन में हमने कैसा किया है, तो बाकी के कंपैरिजन को ध्यान में रख करके इसको पढ़ना है। GS3 के बारे में ये कहा जा सकता है कि हम इस क्रैश कोर्स में जो क्लासेस होंगे, तुम्हारे डेफिनेटली नंबर आने वाले हैं GS3 में, क्योंकि वी हैव फोकस्ड ऑन द एरियाज विच आर नेग्लेक्टेड बाय द स्टूडेंट्स, क्योंकि जनवरी ऑनवर्ड्स या 5-6 महीने से हम प्रीलिम्स ही करते हैं। ठीक है, I don't have mains specific notes ready. I have to rely only on previous year toppers note. भाई किसी भी सब्जेक्ट के बेसिक नोट्स रख लो, चाहे वो टॉपर के हो चाहे नॉन टॉपर के, बट पता नहीं आप किसी और के नोट्स कैसे यूज कर सकते हो। नोट्स तो आपको अपने हिसाब से बनाने होते हैं। नोट्स किसी भी के नोट्स बहुत पर्सनल चीज है कि आप किस तरीके से उसको यूज करते हो। अब आज इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम अपनी प्रेजेंट सिचुएशन समझे। अब हमारे पास ये समय बचा ही नहीं है कि हम पूरा बेसिक पढ़ें और आइडियल, यूपीएससी में आइडियल प्रिपरेशन वैसे ही कभी नहीं होगा, तो हमेशा स्मार्ट प्रिपरेशन होगा। टेस्ट के जो क्वेश्चंस होंगे वो एक्सपीरियंस के बेसिस पर बेस्ट पॉसिबल नॉलेज दिया। अगर तुम टेस्ट के ही क्वेश्चंस कर लो और उसको ही याद कर लो, आई थिंक उसके अलावा कोई कुछ कर, अब समय कहाँ है कुछ और करने का, तो हमें अभी प्रायोरिटाइज करना है यही समय। अगर आपने इस समय को प्रॉपर कैपिटलाइज नहीं किया तो हमारी पूरी साल भर की मेहनत वेस्ट चली जाएगी। और प्रिपरेशन में आइडियलिस्टिक मत रहो, प्रिपरेशन में बहुत प्रैक्टिकल रहने की जरूरत है। ठीक है, लोग बेसिक से पढ़ना चालू करते हैं सारे टॉपिक्स, लेकिन वो समय कहाँ है, समय नहीं है अभी। और हमेशा समझो मैंने कर लिया है, क्यों कर लिया? क्योंकि मेंस में आपने 4 सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स में कर ही लिए हैं। ठीक है, यू हैव नॉट बीन एबल टू डिवोट इनफ टाइम फॉर GS, इसीलिए मैं कह रही हूं इसको तुम शुभ्रा सूत्रा समझ लो, यही क्वेश्चंस याद करके खत्म कर दो। अगर और कुछ नहीं हो सकता है तो यही कर लो। ठीक है, अगर तुम ये सोचोगे कि अब मैं सारी चीजें पढ़ूं समझूं, तो वो होने से नहीं रहा। जो अच्छा होता होगा वो भी चला जाएगा। प्लस जो पढ़ के रखता है उसकी भी सिचुएशन वही होती। कुछ लोग बिल्कुल एक्सेप्शनल होते हैं, लेकिन ऐसे एक्सेप्शनल लोग 10 ही 15 होते हैं, लेकिन सिलेक्शन तो बहुत सारे लोगों का होता है ना। हर इंसान एक्सेप्शनल नहीं है, लेकिन फिर भी वो निकल जाता है। ठीक है, तो अभी जो मेंस होगा ना, वो कॉन्फिडेंस से होगा, तुम्हारी मन स्थिति से होगा, तुम्हारे इस कन्विक्शन से होगा कि जो मैं अब करने जा रहा हूं वो बेस्ट है और यही पॉसिबल है। रेस्ट यू लीव थिंग्स ऑन समथिंग ऑन विच यू डू नॉट हैव कंट्रोल। तो आज के समय में बिल्कुल, इनफैक्ट जो सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा है, जैसे वर्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, तो एक जस्ट ग्लैंस रख लो, शॉर्टकट्स रख लो। हम लोग जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे तो चैंपियन गाइड्स आती थी, उससे भी बहुत अच्छे अच्छे नंबर आ जाते थे। तो नंबर आने के लिए आपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ी, उसका कोई लिंक ही नहीं है, मेंस में तो नहीं है। ठीक है, which is better to start daily answer writing as it requires lot of time to prepare for one GS paper। हाँ, तो अब ऑप्शन क्या है? तो डेली आंसर राइटिंग, सुबह उठना है, रात भर पढ़ो, सुबह माइंड, जब हम उठते हैं हमारा माइंड फ्रेश होता है। ये रिचुअल आपको करना ही पड़ेगा। जितने लोग सक्सेस हुए, जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, बिना लिख के सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो 3-3 घंटे वाला टेस्ट मत करो, हर दिन आप हैबिट में डालो। जस्ट एक क्वेश्चन लिखो, थोड़े दिन बाद 2 क्वेश्चन लिखो, थोड़े दिन बाद 3 क्वेश्चन लिखो। ठीक है, एक ही दिन मत लिखो, इतना टाइम मत करो, लेकिन हाँ ऑन एन एवरेज मान के चलो 2 में GS के क्वेश्चन, वो भी ऐसे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन
जिसमें आंसर राइटिंग मैटर करेगी। आंसर राइटिंग मैटर करेगी एथिक्स में। एक दिन ऐसे में भी रखो, ऐसे क्यों छोड़ रहे हो? ऐसे में तो बिना किसी मेहनत के मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। जो हम जीएस में पढ़ते हैं उसमें थोड़े आइडियाज लगा दिए बिना किसी मेहनत। एब्स्ट्रैक्ट ऐसे से स्टूडेंट्स डरते हैं। एब्स्ट्रैक्ट ऐसे तो सबसे फ्री फंड की चीज है, जिसको बहुत आसानी से आप कॉन्सेप्ट लिखो, उसको रिलेट कर दो। तो सारा पूरा पूरा टेस्ट पेपर मत करो, क्योंकि टेस्ट पेपर तो टेस्ट सीरीज से कर रहे हो, लेकिन दो दो क्वेश्चन, भाई टेस्ट सीरीज का एक सिलेबस होगा। टेस्ट सीरीज का मान लो पॉलिटी का सिलेबस है, पॉलिटी के सिलेबस में 10 टॉपिक हैं, 10 टॉपिक के एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, एक्सपेक्टेड टॉपिक पे क्वेश्चन लेके लिखना है। मतलब सुबह अगर 6 बजे उठते हो तो 5 बजे उठ के 5 से 6 करना है। यही वाला समय है जिसमें अब हम हिम्मत नहीं छोड़नी है ना, इसी समय में कर लेना है। इस बार नहीं किया तो समझो पूरा 1 साल का वेस्टेज। वो एक बहुत टॉर्चरस चीज है, पूरा 1 साल वेस्ट करना। उससे अच्छा है कि 1 घंटा थोड़ा कम सो लो। फॉर आंसर राइटिंग डू वी नीड टू कंसर्न अबाउट करेंट डिस्पेंसेशन आइडियोलॉजी? यस। पॉलिटी में आप वैसे आंसर कतई नहीं लिख सकते जो हिंदू में आ रहे हैं। हिंदू में पढ़ लो, फ्रंटलाइन में पढ़ लो, CAA और इन सब के खिलाफ आ रहा है 370। बट क्या तुम ये आंसर लिख सकते हो? ये आंसर नहीं लिख सकते। आप गवर्नमेंट में जा रहे हैं, आपको गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव समझना है। मेरी पर्सनल आइडियोलॉजी भाड़ में गई। इंपॉर्टेंट क्या है कि एग्जामिनर क्या सुनना चाहता है, उससे हमको लेना देना है। तो इसीलिए अभी इस साल इतने कंट्रोवर्शियल इश्यूज हो गए। गवर्नेंस तो बिल्कुल मैनेजेबल ही नहीं रहा है। फार्म बिल है, लेबर कोड है, पता नहीं क्या क्या, इतनी सारी स्कीम्स है। तो हमको गवर्नमेंट ऐसे, बट लेकिन ऐसा भी नहीं कि बस हमको भक्त थोड़ी दिखना है, ठीक है। लेकिन आप गवर्नमेंट को बिना पूरे पर्सपेक्टिव को समझे क्रिटिसाइज भी कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने जो ये टेस्ट सीरीज में, पॉलिटी मेरा फर्स्ट टेस्ट है, तो मैंने उसमें इसीलिए ये इश्यूज डाले हैं। जम्मू एंड कश्मीर इश्यू डाला है, सिटीजनशिप इश्यू डाला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का इश्यू डाला है। तो उसको हमको कैसे, हमको ये नहीं दिखाना है कि हम कितने बड़े क्रांतिकारी हैं, हमको ये दिखाना है कि हम कितने ज्यादा सिस्टम के लिए यूजफुल व्यक्ति होंगे। मैम टॉपर से व्हाट यू शुड राइट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स? यस, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स और रिकमेंडेशंस। भाई परफॉर्मेंस है, एक इंसान ने जनरल जजमेंट व्यूज लिख दिए तो उसने, इसका मतलब है पढ़ा नहीं ना। दूसरे इंसान ने उस चीज को ढंग से पढ़ा है, तभी तो वो। और कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट जजेस से, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस के आप जो पॉलिटी के आंसर लिखोगे, अगर आप मान लो एंटी डिफेक्शन लॉ पे लिख रहे हो और उसका सजेशन दे रहे हो और आपको ये पता ही नहीं है कि लॉ कमीशन ने क्या कहा, कि दिनेश गोस्वामी कमेटी ने क्या कहा, तो मार्क्स नहीं आएंगे। हमको अपने आंसर को स्टैंडर्डाइज करना है और ऑब्जेक्टिव बनाना है। How to tackle GS1? Because I left medieval and some part of ancient. Also, there is some negative rumors about ethics program. एथिक्स प्रोग्राम के निगेटिव रूमर्स क्या है मुझे नहीं पता है, प्लीज अगर बताओगे तो अच्छा रहेगा। एड्रेस दिस, आई हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन द एसे एंड क्रैश कोर्स एंड आई एम सेटिस्फाइड बट कंफ्यूज्ड अबाउट दिस। तो एथिक्स प्रोग्राम के रूमर्स क्या हैं, अगर आप स्पेसिफाई करेंगे तभी बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा कोई रूमर है नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ऐसे कर रहे हो ऐसे करते जाओ, क्रैश कोर्स कर रहे हो, ये जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उनको तो पक्का रटना चालू कर दो। माई मेन इशू इज एक्सीडिंग वर्ड लिमिट, माई एडवाइस ऑन कंट्रोलिंग। तो उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा। यू विल हैव टू सी व्हाट इज पेरिफेरल, व्हाट इज एसेंशियल, कोर एंड एसेंशियल, you will have to differentiate, and maybe with the evaluator, maybe with the mentor, you can sit and your specific problem can be solved. What is examiner looking for in our answer? Are we expected to give out wide range of relevant points or focus on presenting a readable nice answer? Readable nice answer थोड़ी enough answer है. If you will not fulfill all the requirements of the question, but don't do unnecessarily excessively in an excessive manner, ठीक है. You cannot just write a readable
nice answer. You are saying it is a nice answer. Nice is a subjective term. Examiner may not find it nice. He may call it as a superficial answer. Man, is the expected question book for GS2 2020 out? No, I am not coming up with the book because I am not getting any time. I am only focusing on this GS test series. How to relate editorials in answer writing. Read editorials, keep it in mind, and whatever you can remember, you just note it down. What about the one who are writing mains for the first time? It is right approach that I have taken. Is it important to read newspaper now? I just read newspaper like you take your daily tea. Newspaper तो पढ़ना ही है. मान लो newspaper नहीं पढ़ रहे हो तो news सुन लो, ठीक है, लेकिन इतना कोई जरूरी नहीं होगा. पॉल साइंस में अगर होगे तो वैसे भी क्रैश कोर्स में वो चीजें कवर ही होंगी. How important are statistics in answers, for example in economic question? Statistics अगर आपके पास हैं, correct है तो nothing like it, but if you do not have then leave it. ठीक है. Suppose I know the crux of some scholar. स्कॉलर का क्रक्स ही लिखना है, किसी भी स्कॉलर का वर्ड बाय वर्ड लिमिट नहीं है. हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर ऐसे? ऐसे के लिए 10 मिनट में खत्म होगा. तो ऐसे के लिए लिखो, इवैल्यूएशन करो और कुछ नहीं हो सकता है. ऐसे के लिए कुछ खास प्रिपरेशन नहीं चाहिए होता है. जो आप जीएस में पढ़ते हो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, वही करो. अगर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हो तो एब्स्ट्रैक्ट ऐसे लिख सकते हो. एब्स्ट्रैक्ट ऐसे उल्टा सबसे आसान होता है लिखना. It is wise to make GS syllabus notes now for 2020. Will file term for both note making and answer writing. नोट मेकिंग तो अभी वही कह रहे हैं, अभी पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकते हो, ना पढ़ो. अभी केवल सेलेक्टिव क्वेश्चंस करो जो करंट डेवलपमेंट्स में हुए हैं. इकोनॉमी में जो करंट हुआ है, ज्योग्राफी में जो करंट हुआ है, पूरा पूरा नहीं पढ़ना है. पहले प्रायोरिटाइज करो कि पहले मैं ये चीजें पढ़ लूंगा, उसके बाद मैं कुछ और करूंगा. तो इसलिए जो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज बनाई है उससे ये इंश्योर किया है कि उसके बाहर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो फिर किसी को नहीं आएगा. मैम और केवल ये नहीं है कि टेस्ट है, मेन चीज है क्लास का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है. मैम जस्ट वांट टू टेल हाउ द टू नाउ स्टूडेंट्स, रिकलेक्ट द एडिटोरियल्स. रिकलेक्शन करना छोड़ दो, वो सब बहुत बड़ा टाइम वेस्ट है. स्ट्रगल with art and culture last time because it cost me trying to her, but not facts पर ज्यादा ध्यान. don't have too much focus on the facts. जैसे कोई पेंटिंग ही है और some sculpture है, and in culture question you see they are not simply asking very factual type of a question. एक बार इकबाल का कोई concept, तो वो तो thematic questions are also there. Understand the nature of the questions. How to cover ethics static from scratch. How important is it compare? अगर if you are political science student तो ethics को तुम वहां से integrate कर सकते हो. इस ethics from scratch कर सकते हो till your prelims result is out. जब तक आपका prelims result out नहीं होता है तब तक जो भी portion आपने छोड़े रखे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री, कल्चर, एथिक्स, अब टारगेटेड करना है, बहुत बढ़िया नहीं करना है. बहुत बढ़िया वाला जो काम होगा वो टेस्ट सीरीज के मेंटोरशिप और डिस्कशन से होगा. अभी कवर करना है, जितनी पतली से पतली किताब कहीं मिल जाए उसी से पढ़ना है. बढ़िया से बढ़िया किताब को बिल्कुल भी छूना नहीं है. Can you tell the basic essence of the answer writing? Do we need to keep topics prepared, have fodder material? Yes. If you are prepared, nothing like it. Fine. So I think this meeting will end in the 10 minutes. Now I will share some of my views on the answer writing. This material we will also be uploading it, so you can have a look on that. And then again, if you have certain doubts, we will restart the session. And I don't want to waste a lot of your time, so I will give you a very quick glance of whatever I am going to do. Maybe in future, if I can make an elaborate video, I'll do that. Fine.
Should I start? One. Fine. So now the meeting will be ending. या अभी 10 minutes हैं. Okay. End क्या? Okay. So if there is any other question, you can go ahead with that. I am not sure about clearing prelims, what to do. Marks are in the range of 94. Even if you are not sure, please prepare for mains, because if you get a call, then you will not have a time. And then civil services preparation is a process. And until unless we will take pressure, अगर प्रेशर नहीं होगा तो वैसे भी कभी प्रिपरेशन नहीं होगा. लोग जिनका नहीं भी होता है वो जा करके एग्जाम वाले दिन पेपर लिखते हैं अगले दिन. ठीक है, इस साल हुआ या नहीं ये नहीं करना है, हमेशा ये समझना है कि होना है. हाउ टू अप्रोच केस स्टडीज इन एथिक्स. तो केस स्टडीज इन एथिक्स के लिए बेस्ट पर्सन, आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन, हमारे यहाँ जो राहुल वो अतुल सर हैं, ही कैन we can organize interactive session with Atul sir for the case studies. आज के समय में अगर कोई मुझसे पूछे तो सेफेस्ट तरीका है टेस्ट सीरीज करना. आप टेस्ट सीरीज में इसीलिए हर टीचर के मैंने 2-3 क्लासेस रख दिए. सबके इक्वल भी नहीं रखे क्योंकि सारी चीजें समझने की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ क्लासेस रख दिए हैं जो इन चीजों को ओवरकम कर दे सकता है. Can we skip word history as hardly one question is? स्किप कर सकते हो अगर तुम पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हो. थोड़ा बहुत रेनेसा वेनेसा ये सब तुम लोगों को पढ़ाई होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ा होगा, नेशन स्टेट आता है. तो नेशन स्टेट में कोई जरूरी है कि आप इवेंट्स लिखो, आप कंसेप्ट्स, आपके अंदर कम नॉलेज को हम लेकिन कैसे यूज करें. पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट तो स्किप कर सकते हैं. डीकोलोनाइजेशन है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, पॉवर्टी है, नॉर्थ साउथ डिबेट है, ऐसे की क्वेश्चंस को डाल करके इंप्रेस कर दो. मेन है कि कौन सा आंसर अच्छा है, कौन इस बात की अथॉरिटी है कि ये डिसाइड करे कि ये आंसर अच्छा है. हम किस बेसिस पर डिसाइड करें, कोई अथॉरिटी नहीं. तुम्हारा दिमाग, योर माइंड इटसेल्फ विल टेल which is a good answer. I will show you one question, 3 answers. You yourself can tell, yes, this is a good answer. After that, we can decide why that answer is a good answer. How to inculcate everything in the answers and current. So first of all, before writing an answer, you should have the structure of the entire answer. Can we use diagrams or flow charts? You can use diagrams, you can use flow chart depending upon the paper. There is no harm into that. Fine. इसमें यही आ रहा है. Any more If questions? we won't clear mains, then would not backfire for UPSC 21 mains. Yeah, also if we focus only on test series, won't do comprehensive. तरुण, ये गलती बहुत लोग करते हैं, comprehensive preparation. जब भी whenever any person says कि मैं इस साल छोड़ करके अगले साल comprehensive portion कर रहा हूं, तो वो पर्सन चीजों को पोस्टपोन करने का हैबिचुअल हो गया है. तो वो अगले साल भी कभी प्रिपेयर नहीं होगा. हर साल तुम्हारी सिचुएशन यही रहने वाली है. आज का जो समय है कोई पता नहीं आगे का समय और अनफेवरेबल हो जाए. ठीक है, तो ये खेल है, यूपीएससी का खेल है. तुम कुछ नहीं याद, मतलब कुछ याद रहता ही नहीं है. प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद सब पढ़ते हो, टेस्ट सीरीज करके लोगों का सिलेक्शन हो जाता है अगर किसी ने भी बेसिक्स पढ़ा है. I haven't received DPSP citizenship. Okay, so we will ensure that you get it. Reason for penalty being imposed on overall marking, वो मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट निकाल करके रखा है. उसमें यूपीएससी ने वो डॉक्यूमेंट दिया है, आप पीडीएफ में देख लेना कि लोग क्या क्या गलती करते हैं, किस किस चीज के लिए उनको पेनलाइज किया गया है. फॉर राइटिंग टेस्ट, प्लीज शेयर आंसर सॉफ्ट कॉपीज फॉर राइटिंग टेस्ट so that we can write in a framework. I think it is done in that way itself. Okay, chalo, fine. So fine. So ये हटा दो, शायद आ रहा है उसमें कैमरा में. ठीक है. So see, this was one of the question I had framed, and
why this particular question has been framed on uniform civil code, because this is also, पहले तो क्वेश्चन फ्रेम करना आना चाहिए कि भाई एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये स्मार्टनेस होनी चाहिए कि हम ये गेस वर्क कर पाए. तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकता है. वाई इट इज एक्सपेक्टेड? क्योंकि ट्रेंड रहा है कि सेक्युलरिज्म से क्वेश्चन पूछना है. अब सेक्युलरिज्म के नेचर पे एक क्वेश्चन आ चुका है, तो सेक्युलरिज्म से विच इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? सेक्युलरिज्म का एक नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है यूसीसी. नेक्स्ट वाई क्वेश्चन ऑन यूसीसी कैन कम? बिकॉज दिस इज वन ऑफ द एजेंडाज ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट. ठीक है. So I am giving you one specimen which I have asked one of the aspirant to prepare this particular answer. Fine. So that I can explain that from my perspective, is it a good answer or is it a bad answer, or how we can improve this particular answer. Now some students said that can we keep certain introductions prepared in advance? I will say yes. कुछ introduction, कुछ conclusion, भले इंट्रोडक्शन प्रिपेयर नहीं करो लेकिन स्टार्ट पॉइंट्स हम पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हैं. क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस तो इन टॉपिक्स के अराउंड ही रहने वाले हैं ना. क्वेश्चंस तो सिटीजनशिप के अराउंड ही रहने वाला है, क्वेश्चन आर्टिकल 370 के अराउंड रहने वाला है, क्वेश्चन यूनिफॉर्म सिविल कोड के हो सकता है, क्वेश्चन जीएसटी कंपनसेशन के अराउंड रहने वाला है. तो क्वेश्चन हमको एक्सपेक्टेड है, क्वेश्चन के लैंग्वेज चेंज होंगे, लेकिन स्टार्ट पॉइंट जरूरी नहीं ना कि हम इंट्रोडक्शन सेकेंड पैराग्राफ में भी लो लिख सकते हैं. स्टार्ट पॉइंट तो हमारा प्रिपेयर डेफिनेटली हो सकता है. खेल सारा क्या है? इंप्रेशन का खेल है. माइंड एग्जामिनर का भी माइंड कैसे, हम यही कह रहे कि डोंट, दिमाग से भी ज्यादा ना दिल से आंसर लिखो. लोगों को लगना चाहिए, मतलब दे शुड फील योर आंसर. ठीक है. अब जैसे ये पर्टिकुलर आंसर है, ये आंसर, एक आंसर मेरे पास है जो स्टूडेंट ने अपने प्रिपरेशन के बेसिस पे लिखा है, ये आंसर उसने रिसर्च करके लिखा है, और एक तीसरा आंसर है जो मैंने लिखा है. ठीक है. तो अब ये है, सम ऑफ द रीसेंट ऑब्जर्वेशंस बाय सुप्रीम कोर्ट हैज पुट द स्पॉटलाइट बैक on the uniform civil code. What aims the introduction of UCC seeks to achieve? What are the arguments for and against? Now, what is the expectation of a good answer? How a good answer should start? Should I start by introducing what is uniform civil code? Normally somebody who is well prepared starts like this, that first explain what is uniform civil code. Fine. So this student has also introduced in this way कि पहले हम uniform civil code introduce कर दें. फिर recent observation has put the spotlight back on the debate. कि हमको क्वेश्चंस के पूरी वर्ड पता होना चाहिए, यानी कि पहले से ही डिबेट है, यानी वी शुड नो द हिस्ट्री ऑफ द डिबेट. तो ये तो डिबेटेबल इशू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टाइम से है. अब इस स्टूडेंट ने ये कंटेंट सब कुछ देख करके ये आंसर लिखा है. ठीक है. तो इन्होंने लिखा हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ने ये बोला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये डिबेट है, आर्टिकल 44 में ये कहा गया है, करंट सिचुएशन ये है कि हिंदूज के इतने लॉज हैं, मुस्लिम्स का उतना लॉ नहीं है, पारसी, ये सब लिखा है. अब मेन क्या है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट लिखी है, लेकिन जो रीसेंट डिबेट्स हैं उसको लिखा ही नहीं. नाउ नेक्स्ट, रीसेंट ऑब्जर्वेशंस बाय सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट ऑब्जर्वेशन है, शाइनिंग एग्जांपल ऑफ गोवा वाला जो केस है. आर्गुमेंट्स फॉर यूसीसी, 4 आर्गुमेंट्स अगेंस्ट, होमोजेनस आर्गुमेंट्स फॉर equality, non-patriarchal answer, simplification of laws, will strengthen secular nature of the society. Arguments against, homogenizing effect, implementation challenges, way forward, law commissions का लिखा है. तो एक तरीके से ये एक आंसर अच्छा आंसर है. ठीक है. क्यों? क्योंकि देख के लिखा गया आंसर है. एक और स्टूडेंट का आंसर है जिसने देख के नहीं लिखा है,
लेकिन मेरे हिसाब से ये जो पर्टिकुलर आंसर है, इसमें देयर आर मेनी थिंग्स विच आर नॉट नीडेड, plus we can write many things which are actually there is no flow in this answer. अचानक कॉन्सेप्ट चालू हो गया, उसके बाद उसकी हिस्ट्री चालू हो गई, उसके बाद उसके प्रोस कॉन्स आ गए. आंसर में एक फ्लो नहीं है, आंसर में कोई आइडिया नहीं है, आप किस आइडिया के ऊपर बात कर रहे हैं मेन है. अब हमारे आंसर्स और बाकी के आंसर्स, हमको अगर कुछ एक ब्राउनी पॉइंट चाहिए या हमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए, तो हमको थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा ना, दूसरों से थोड़ा अलग लिखना पड़ेगा. ऐसा भी आंसर लोग नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ये तो देख के लिखा हुआ आंसर है. बट एक समझ कि हम आंसर और वो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में है. फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन किसके ऊपर है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर क्वेश्चन है. ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड और डिबेट क्या है? आपको इश्यू का क्रक्स समझ में आता है कि नहीं, सोल समझ में आती है कि नहीं? तो सोल क्या है? सोल जो है वो लॉ है, सोल जो है वो जेंडर जस्टिस है, सोल इसका सेक्युलरिज्म है. किसी भी पॉलिटी के क्वेश्चंस के सोल को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो ये लॉ के कॉन्टेक्स्ट में है. पहला क्वेश्चन तो लॉ है, तो मैं हाउ विल आई राइट? आई विल राइट समथिंग ऑन द लॉ. अब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है या अप्रोच है, हमेशा अच्छा रहेगा अगर यू आर अवेयर ऑफ योर कल्चर. तो इसमें कुछ पढ़ना नहीं होता है, एक सिंपल सा आप संस्कृत का श्लोक लिख सकते हो, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया. This is the tradition of India, that the purpose of law is the well-being of all. And in this context, we can analyze the debate of the Uniform Civil Code. Fine. So those who talk about or who advocate the need of civil code, their basic argument will be that it will bring the gender justice besides the additional benefits. तो जब हम ऐसे लिखेंगे additional benefits, the simplification of the laws, that will make justice fast. तो किसी भी चीज का सोल को पकड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, क्या उसका लाइन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको एक थ्रेड में बांधना है उनके व्यूज को. ठीक है, एक मैकेनिकल नहीं. 5 चीजें, हम गाड़ी का टायर, स्टीयरिंग सब ला करके रख दे तो गाड़ी नहीं बनती है. घर में ईटा और सारा कुछ रख दे तो घर नहीं बनता है ना. एक आर्किटेक्चरल डिजाइन होता है. ठीक है, एक हार्मनी होनी चाहिए हमारे आंसर्स में. तो अब अगर हम ऐसी बातें करेंगे, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं या ये लोग क्या कहते हैं, वो जो इनका है पंचशील की जगह इन्होंने पंचत्व, पता नहीं पांचजन्य कुछ तो स्टार्ट किया है, समृद्धि. और ये इट मीन्स कि यू शुड बी अवेयर ऑफ उस तरीके के, अगर आप कल्चरल रूट्स, अगर आपके आंसर में ऐसा लगता है, और पॉलिटी के हर आंसर में ये पॉसिबिलिटी है कि आप कहीं ना कहीं से अपने कल्चरल रूट्स को लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये अब नेक्स्ट मेरा वाला कौन सा है? फाइन. तो जैसे लोका समस्ता सुखिना भवन्तु, इससे आप इंट्रोडक्शन में पूरा थीम ही दे सकते हो कि यू आर गोइंग टू look at the debate of uniform civil code with the objective that it serves the well-being of the all. Fine. And the question क्या है? Some of the recent observation has put the spotlight back. उस स्टूडेंट ने स्टार्ट किया व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन तरीका क्या है स्टार्ट करने का? क्वेश्चन से लिंक करके स्टार्ट करना है ना. द डिबेट ऑन यूसीसी इज मोर देन 180 years old when the second law commission considered the matter rather than what is uniform civil code. तो हम अब ये सारा जितना है उसको मैं डाल दूंगी जिससे तुम लोग डिटेल में पढ़ सकते हो. तो डिबेट्स पे फोकस करना है. Why the law commission under the British didn't include considering the stage of the society? Then what was the view of Ambedkar on this issue? What was the view of Pandit Nehru on this issue?
what was the view of the women members of the Constituent Assembly on this issue. And then the debate was renewed. When the debate was renewed in Shah Bano case. तो मे बी हो सकता है तुम्हें लॉ कमीशन की उतना इंफॉर्मेशन नहीं हो, लेकिन शाह बानो का केस तो सभी को पता है, लेकिन हम एक अलग कैसे अट्रैक्ट करेंगे लोगों को, ठीक है. तो फिर 2-3 इंपॉर्टेंट केसेस, सरला मुद्गल केस. फिर आज का जो सबसे रीसेंट केस है, रीसेंट केस का रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर लिखने में. नाउ इन यू कैन ऑल्सो राइट what purpose it will serve, because क्वेश्चन में ये भी है ना, हमें बार बार थोड़ा क्वेश्चन पे जाना चाहिए कि क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या है. तो दे आर आस्किंग what purpose it will serve, then you can write the aim of UCC. So that points are fine. So what is a way forward? Way forward में जैसे हम सोच रखते हैं, वो हमें अपनी भी सोच बतानी है, बट कमीशंस या कोई एक्सपर्ट बॉडीज की भी जानकारी होनी चाहिए. बिकॉज हमने सोच बनाई कैसे है बिना एक्सपर्ट की जानकारी के. हमें ये भी तो दिखाना है कि हम पढ़ करके ओपिनियन बना रहे हैं, बिना पढ़े थोड़ी ओपिनियन बना रहे हैं, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू लॉ कमीशन, बेस्ट वे फॉरवर्ड इज टू रिफॉर्म द पर्सनल लॉ, एंड you have to first bring address the inequality within the groups and then between the groups. Fine. अब जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, बहुत सारी चीजें है ना, राइट्स का इशू आता है, जस्टिस का इशू आता है. तुम अपनी नॉलेज, मेरी वाइड नॉलेज है, इसको कैसे शो कर सकते हो, उसको किसी को ह्यूमन राइट से लिंक कर दो. Thus, reformative approach should be adopted rather than the hasty action. जैसे लॉ कमीशन ने लिखा, अब लॉ कमीशन ने लिखा, ये खत्म नहीं होता है आंसर. अब तुम्हें अपना भी लिखना चाहिए, तुम इस पर कैसी पोजीशन ले रहे हो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, reformative approach should be adopted. Hasty decision can be problematic. UCC. Now you cannot write against UCC, ठीक है. Even if some of you may think that UCC is not good, we should adopt multicultural approach, but government doesn't think like that, and you are going to join that government. So हमेशा कैसे लिख सकते हैं आंसर? In the long term, UCC will certainly enable the men and women of this country to be more aware of these rights in accordance to the spirit of the Universal Declaration of Human Rights, which resonates in Indian Constitution. आया. तो हमें जो नॉलेज हमने ले रखी है, ह्यूमन राइट्स हमें पता है, इंडियन कल्चर हमें पता है, ये सोचो कि कहाँ हम लगा सकते हैं और कैसे हम उसका फायदा दे सकते हैं, फायदा ले सकते हैं, ठीक है. अब जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है. अब जम्मू और कश्मीर पे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, discuss the constitutional position of the state of Jammu and Kashmir since the enforcement of the constitution. ये भी एक expected question है, कहीं ना कहीं से जम्मू कश्मीर का क्वेश्चन आ सकता है. सरकार ये भी देखना चाहेगी कि क्या तुम लोग बस नेगेटिव नैरेटिव के अगेंस्ट घूम रहे हो कि तुम्हें गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव पता भी है या नहीं पता है. नाउ डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन. इसमें मैंने जिन लोगों को भी ट्रायल के लिए कहा कि आप इसका आंसर लिखिए, ठीक है, सबने आंसर क्या लिख दिया? सबने आंसर लिख दिया जेके रीऑर्गेनाइजेशन के बाद ये चेंजेस हैं. एक पॉइंट है यूनियन टेरिटरी बन गया, ठीक है, लेकिन इतना लेजिस्लेचर है, ये गवर्न होगा, गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर है. मतलब आपने क्वेश्चन समझा नहीं, क्वेश्चन वो चीज पूछ नहीं रहा है, क्वेश्चन किस चीज पे पूछ रहा है. और ये कॉमन एरर सरप्राइजिंगली जितने लोगों को भी हमने कहा जो मॉडल आंसर लिख करके ले आओ इस पे, सरप्राइजिंगली सबने एक ऐसा लिख दिया कि व्हाट आर द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय जेके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, बट क्वेश्चन वो था ही नहीं, ठीक है. क्वेश्चन क्या था? डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ स्टेट ऑफ जेके, ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, क्या आइडियल आंसर होना चाहिए? पहला आइडियल आंसर होना चाहिए था 370 का क्या सिचुएशन था, 370 के बाद
अब क्या चेंजेस आए हैं। और क्वेश्चन में अगर बस हो गया डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, तो बिना एनालिसिस के आंसर कंप्लीट नहीं होता है कि हमने डिस्कस कर दिया आई फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, इसके साथ साथ तुमको अपने से लिखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हैव बीन गुड और बैड, व्हाट इज द डिबेट अबाउट इट, व्हाट इज द स्टेटस अबाउट इट, कोर्ट में उसका कोर्ट का क्या पोजीशन है, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। तो गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव्स को समझना, क्वेश्चंस को, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप कितना होलिस्टिकली समझते हैं ना, ये तो आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन है। तो कुछ लोग तो डिस्कस कर देंगे कि 370 के समय ऐसा था, अभी ऐसा हो गया है, लेकिन डिस्कस, यू हैव टू डिस्कस, यू डोंट हैव टू सिंपली एन्यूमरेट द चेंजेस, आप उसको डिस्कस करें। डिस्कस मतलब आप उसको एनालाइज करें, ऐसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, क्या ये होना ही इनफ है या कुछ और होना चाहिए था। ठीक है, डिस्कस, कोई आपसे कहता है डिस्कस करो, तो तुम उसको कहां तक डिस्कस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें जैसे कि अगर आपके पास एक्सपर्ट ओपिनियन है तो आपको कहीं कहीं एडवांटेज मिल सकता है ना, एक दो मार्क्स का, एक दो मार्क्स का अगर 20 क्वेश्चन में एडवांटेज मिल गया एक मार्क्स का, तो बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा ना। तो अगर कोई सम अप करता है, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो अगर आपको जानकारी है कि कलहन इज सपोज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट person who has written the history of Jammu and Kashmir, राज तरंगिनी में कलहन का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि हाउ टू विन द कश्मीर। सो अगर आप ये पॉइंट लिख दोगे तो ऑब्वियसली आपका जो नॉलेज है और आपका जो लेवल है, वो एग्जामिनर को बाकी चीजें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आप एक अलग सोच पे हो। इसीलिए सिर्फ फैक्ट्स आंसर नहीं होता, ठीक है, तुमको एग्जामिनर को इम्प्रेस करना होता है, और इम्प्रेस करने मीन्स यू आर अ डिफरेंट क्लास ऑल टुगेदर, यू डिजर्व सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स, तुमको ये मौका छोड़ना ही नहीं है, तो करके आना है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो इतनी भी अवेयरनेस है कि कश्मीर के बारे में किसने हिस्ट्री लिखी है, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा ना, कलहन राज तरंगिनी, लेकिन हो सकता है जानकारी नहीं हो, लेकिन हाँ थ्रू द टेस्ट सीरीज आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि तुम्हारे लेवल पे उतना एक्सपीरियंस या एक्सपोजर नहीं है, इसलिए यू कैन टेक द हेल्प। ठीक है, तो डिस्कस क्वेश्चन का भी मतलब क्या है कि आप इसको एनालाइज करें। फाइन, तो नेसेसरी फैक्ट्स जो है 5th अगस्त 6th अगस्त, गवर्नमेंट हैज गिवन फॉलोइंग रैशनल, इट विल कंप्लीट द इंटीग्रेशन। तो करंट स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज है तो उसका करंट स्टेटस क्या है, क्या मैटर सब जुडिस है नहीं है, तो वो सारे पॉइंट्स लिखो। सिलेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे आराम से नहीं होने वाला है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? हमें बहुत लोगों को बीट करना है ना, निकालना है हमें अपने का एक अलग, और हमेशा सोचो सिलेक्शन गया भाड़ में, मुझे तो रैंक लेकर के आनी है, और इतना अगर किसी ने किया तो ऑब्वियसली वो स्टूडेंट की सिचुएशन बाकियों से ये लोग कर ही नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं वो तक नहीं समझते हैं, तो स्टूडेंट से तो छोड़ ही दो। ठीक है, नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना, लास्ट में आपको चाहे डिस्कस क्वेश्चन हो, लास्ट में एक अपना वे, हाउ डू यू लुक एट द सिचुएशन, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, क्या मैंने लिखा है यहाँ पे। It is to be noted that Kashmir has been suffering, the constitutional concessions have not facilitated the integration. So वही चीज तो हम नहीं कर सकते, सब इतने 70 साल से चला आ रहा है, सरकार का पर्सपेक्टिव भी आपको समझना पड़ेगा। Hence the rules of engagement have to be changed. ठीक है, कुछ स्मार्ट सेंटेंसेस रेडी रखो। फॉर एग्जाम्पल, चेंज इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, एक्शन है। अब यही पोजीशंस आप इंटरव्यू में भी तो लोगे। While the abrogation of Article 370
has been necessary condition, but you write it is not a sufficient condition. तो कश्मीर का क्वेश्चन आए, कलहन हमेशा ही लिखो, कोई भी कश्मीर का क्वेश्चन आएगा कलहन का कोड काम ही आ जाएगा. कश्मीर का कोई क्वेश्चन होगा एंड पॉइंट पर ये कंक्लूजन काम ही आएगा. भाई क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं आएगा. ठीक है, तो इसी को स्मार्ट प्रिपरेशन कहते हैं. स्मार्ट प्रिपरेशन अब ये नहीं है कि हम 370 पूरा पढ़ें और फिर चेंज करें और 5 एडिटोरियल पढ़ें, उसका समय कहाँ है. अब मान लो जैसे सिटीजनशिप है, अब सिटीजनशिप इतना कंट्रोवर्शियल इशू है. व्हाट चेंजेस have been introduced by Citizenship Amendment Act? What controversies are attached to the amendment? Can CAA be challenged under Article 131? अब इस टेस्ट में तो मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस पर्पसफुली दिए जिस पर मुझे लगता है कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. बहुत सारे क्वेश्चंस भी देने की लिमिट है, इसलिए मैंने 131 और सिटीजनशिप कंबाइन भी कर दिया है कि क्या स्टेट ऑफ केरला यूजिंग आर्टिकल 131 कैन अप्रोच बाय दिस. ठीक है, तो ये जो आंसर्स हैं उसका एक पर्पस ये भी है इंफॉर्मेशन देना. तो व्हाट चेंजेस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, व्हाट कंट्रोवर्सीज आर अटैच्ड. अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट कंट्रोवर्सीज आर अटैच्ड, तो इट इज नॉट इनफ दैट यू जस्ट राइट द कंट्रोवर्सी. यू हैव टू ऑल्सो राइट कि भाई द कंट्रोवर्सीज आर देयर, बट why this has been done. You have to write the rationale of the answer also. Fine, so this was just some approach I wanted to discuss. Fine, ये है, ये तो यूपीएससी के वेबसाइट पर ही है. कॉमन मिस्टेक्स जो कोई पूछ रहा था, पेनल्टी मार्क्स क्यों होते हैं, हम लोग डाल देंगे, लेकिन ये तुम्हें भी मिल जाएगा. ठीक है, जैसे कई लोग अपना नाम लिख लेते हैं नेम ऑफ एग्जामिनेशन की जगह, ये ओम ओम लिखना. ठीक है, ये सब चीज उन्होंने निकाल के दी है कि ये यहाँ पे बिना मतलब, जब हम लोग भी पॉल साइंस में भी पेपर चेक करते, पता नहीं बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, 10 मिनट 45 40 60. ये सारी चीजें यूपीएससी की वेबसाइट से मैंने ले ली है. इररिलेवेंट मैटर शुड नॉट बी रिटन, तो इसको आप खुद ही देख सकते हो. इस आंसर को आप डिस्कस फिलहाल करने की जरूरत नहीं है. दिस इज कि जो ट्रेंड, दिस पेपर वाज कि ट्रेंड देखो कि बैलेंस पेपर है. डू यू थिंक कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स? तो सिलेबस से ही क्वेश्चन आ रहा है. कैट है, सिलेबस से क्वेश्चन आ रहा है, प्लस समथिंग विच इज इन न्यूज. फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकर्स, इस बार गवर्नेंस में फार्मर्स बिल्स फिर भी हमेशा आ सकता है, तो गेस किया जा सकता है क्वेश्चंस को. ठीक है, नाउ दिस आई हैव प्रिपेयर्ड टिप्स ऑन राइटिंग. इसको अपलोड कर देंगे. टाइम करो, रीड थ्रू द क्वेश्चन करो, लुक एट द डायरेक्टिव वर्ड्स. लोग डायरेक्टिव वर्ड्स को ध्यान में नहीं रखते हैं. आउटलाइन द आंसर, कैसे कम समय में प्रॉपरली कैसे लिखना है, उसका एक पहले आपके पास ब्लूप्रिंट होना चाहिए आंसर लिखने का. ठीक है, लिखने के बाद एक बार अगर हो सकता है कि इफ यू कैन रिवाइज. कभी कभी हमें फैक्ट्स नहीं है तो हमको बजाय 1884 लिख करने के लिए हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, गलत नहीं लिखना है. अब ये जो कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, हालांकि मैंने इसके मीनिंग्स नेटवेट से ढूंढ के लिख दिए हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन लिखोगे इतना तुमको याद रहने वाला नहीं है. इसलिए कॉन्सेप्ट लिखो, प्रोज एंड कॉन्स को करो. इंट्रोडक्शन में आपको ये कम्युनिकेट करना है कि यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. मेन बॉडी में यू विल हैव टू टेल व्हाट ऑल यू नो अबाउट द क्वेश्चन, हाउ यू एनालाइज थिंग्स, प्लस कंक्लूजन. ठीक है, तो जैसे एनालाइज, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, ये बहुत स्टैंडर्ड, बहुत जगह की यूनिवर्सिटीज से, फॉरेन यूनिवर्सिटी, सब जगह से मिला करके ये एक लिस्ट लिख दे, क्योंकि एक बहुत सारा ये कॉमन क्वेश्चन होता है. I think you can read it and understand it. Fine. So that's all. Now we can restart with the Zoom session.
और यूपीएससी का इंस्ट्रक्शंस वाला भी था ना एक यहाँ पे, ये तो पेपर है, ये भी पेपर है, ये वो कहाँ गया? ठीक है, इसको जरूर पढ़ लेना. मेन एग्जामिनेशन इज इंटेंडेड टू assess the overall intellectual traits, not just collection of facts. In depth understanding, क्योंकि if you will not have depth understanding तो आप analyze कर ही नहीं सकते हैं. Rather than range of information and memory, ये line बड़ा important है. Range of information, memory नहीं, क्योंकि आपको analyze करना है. ठीक है? So that's all. So we are restarting. You can ask your questions if you have any. Welcome back to everyone. अगर किसी के ओरल क्वेश्चंस हैं तो ओरली वो बात कर ले. Raise your hand and ask your question. If you have question, Anybody one can directly. wants, they can unmute and ask the questions if they don't want to write. अगर आपको orally पूछना है पूछ लो. Ma'am, headings and subheadings are must for clarity or impression in every question. Heading से अच्छा आप underline करो. ठीक है? Can we leave modern history and post independence if we have PSIR? हाँ, आप छोड़ दो. PSIR में जो कॉमन नहीं है, जैसे गवर्नर जनरल या एडमिनिस्ट्रेशन, वो वाले इश्यूज कर लो. सुनाई पड़ रहा है? Yes, ma'am, you are audible. आप चाहे तो आप बात भी कर सकते हैं. मतलब यू कैन आस्क ओरल क्वेश्चंस आल्सो. और अगर क्वेश्चंस नहीं है तो हम सेशन को खत्म भी कर सकते हैं. प्रिपेयरिंग ऑप्शनल टिल प्रीलिम्स रिजल्ट देन प्रैक्टिस. केवल ऑप्शनल पढ़ना और उसके बाद जीएस करना है, ऐसा नहीं होगा. पढ़ाई के लिए 4-4 घंटे का स्लॉट बना लो. 4 घंटे ऑप्शनल, 5-6 घंटे जीएस, या 3 घंटे ऑप्शनल. ऑप्शनल में उतना समय देने की जरूरत नहीं है. क्रैश कोर्स में जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, टेस्ट पेपर में जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उससे आप पढ़ो. How to prepare answer beforehand? To prepare answer beforehand for every topic. ये सोच करके ही रख लो. फार्मर्स है, लेबर है, हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ आना ही है. तो लेबर के बारे में, फार्मर्स के बारे में, जो भी तुमको कुछ चीजें हैं, आप कभी जैसे लेबर इशू है या फार्मर है, लेबर एबर के कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वो भी इस तरीके के भी डॉक्यूमेंट्स जिनका इंपॉर्टेंस होता है, आप लिख सकते हैं. How to filtrate facts from personal view, which is somewhere is fact while reading editorial, because most of the time it is against government. इसीलिए आपको ऐसे सोर्सेज भी पढ़ने पड़ेंगे ना जो गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं. ठीक है? फिर आपको उतना पढ़ाई, मतलब इतना समय किसी स्टूडेंट के पास है नहीं. नेक्स्ट है, किसी स्टूडेंट के पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है. स्टूडेंट छोड़ दो, मैं तो ये कहती, टीचर्स के पास ही यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है. ठीक है? तो उतना समय है नहीं. रेडीमेड चीजें हैं, इतनी चीजें. ये सोच लो कि जितने टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन से पहले उतना मैं रट जाऊंगा, उसके बाद एक्स्ट्रा पढ़ूंगा. क्योंकि एटलीस्ट हम लोग इस फील्ड में हैं तो हमारा इस फील्ड में एक एक्सपीरियंस है. ठीक है? जैसे ये जो टेस्ट सीरीज है, इसमें क्रैश कोर्स भी है, कुछ क्लासेस हैं, इसमें विवेक सिंह सर अपना इकोनॉमी, तो उससे बेटर हो नहीं पाएगा ना कहीं. Can you give example of some sources for value addition? मेरे हिसाब से मेरा टेस्ट सीरीज is the best source because you do not have time. Otherwise, on the net you will have to search a lot. Plus you should also have this idea कि भाई search कहाँ करें. Should I search in this text? But उसके लिए you should have some prior idea. Okay? Suppose राइट टू एजुकेशन पे क्वेश्चन आ गया, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट ना लास्की का. राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ लाइफ विदाउट मैन विच नो मैन कैन सीक इन जनरल. कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं. जजमेंट्स की 1-2 लाइन काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी. मैम, व्हाट टू डू फॉर रिसेंट IR इश्यूज? Recent IR issues, if you are pol science student, don't worry, that will be included in crash course. And if you are GS
test series students, I think the topics that we will do will be enough. Yes, you can rely on our material because ultimately you have to rely on someone. ठीक है, अब किस पर रिलाई करना है वो आपका चॉइस है, आप किसके ऊपर रिलाई कर रहे हो. कब आपको रिस्क लेना ही लेना है, ठीक है. तो कहीं ना कहीं जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी के ऊपर विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सोचें कि हम सारा पॉलिटी पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है. हम इवन आई नो अ ड्रॉप इन द ओशन ना पॉलिटी में. तो अल्टीमेटली प्रैक्टिकल होना पड़ेगा. इसीलिए मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो लोग इस बार मेंस दे रहे हैं, अगर इस टेस्ट सीरीज के 20-20 क्वेश्चंस, 30-30 क्वेश्चंस के आंसर्स रट लो, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है करते जाओ. क्वेश्चन कहीं ना कहीं इनको टच करते हुए आने ही वाले हैं. और चूंकि ये सब आंसर्स टीचर्स ही प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके पास ऑब्वियसली अपने आप ही एज होने वाला है. अगर अपने से बहुत आइडियलिस्टिक, क्यों पॉसिबल नहीं है ना. मॉडर्न लाइफ है, डिवीजन ऑफ लेबर को समझो. हम हर काम हम नहीं कर सकते ना. यू हैव टू हैव दैट डिवीजन ऑफ लेबर. और अकलमंदी क्या है, किसी ने नोट्स बना के रखे, कोई टीचर है किसी फील्ड में वो एक्सपीरियंस्ड है, उसने आंसर बना के रखे हैं, वो तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा है, टेक्निक शेयर कर रहा है. दूसरे के इंसान का फायदा ले लो ना, उसके स्किल्स को, और अपने स्किल्स को मल्टीप्लाई कर लो. सिविल सर्विसेज में आपके पास कितनी नॉलेज इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. यू शुड नो कि लोगों से काम, आप जब आईएएस बनोगे तो भी क्या होता है, दूसरों से काम कैसे कराना है, यही तो आना है. तो तुम कैसे यूटिलाइज करो, यहाँ पे ये टीचर है, इन टीचर्स की ये स्किल है, इस स्किल से मुझे ऐसा फायदा हो सकता है. हर टेस्ट के कारण, हर क्वेश्चन के कारण 1 या 2 मार्क्स तो पढ़ेंगे 3-4, लेकिन बहुत हम लोग कंजर्वेटिवली भी सोचते हैं 1-1 मार्क भी पढ़ता है तो बहुत बड़े डिफरेंस आने वाले हैं वो. We have to give our own interpretation regardless of the directive. डायरेक्टिव तो होगा, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्टिव नहीं होगा आपका इंटरप्रिटेशन. डायरेक्टिव के कॉन्टेक्स्ट में होगा. अगर डायरेक्टिव यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में है तो, या यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, तो रिगार्डलेस थोड़ी होगा, लेकिन आपका ओपिनियन तो होना ही चाहिए. वेयर टू बाई दोज हार्ड कॉपीज, कौन सी हार्ड कॉपीज आप पूछ रहे हो वो मेरे को नहीं पता. तो इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? नोबडी वांट्स टू. आप चाहो तो अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो. Rahul? Yes, ma'am. So should we end this session? Yeah, ma'am. I think you have answered What most of the extent questions. code ma'am. should be used in essay and ethics? देखो, कोड सोर्स से क्या होता है कि अच्छा लगता है, एक फील गुड फैक्टर होता है. ये भी लगता है कि भैया इस बच्चे ने कुछ एफर्ट किया है, इसका कुछ टेस्ट अच्छा है, ठीक है. तो अगर लिखोगे तो अच्छी बात है. Ma'am scored low in mains. Can you tell how to improve it? But in which paper? आपको खुद अपने पेपर के साथ बैठना पड़ेगा. अभी चूंकि ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस पॉसिबल नहीं है, तो पहले मैं 1-to-1 वो भी कर पाती थी, तो वो भी अभी पॉसिबल नहीं है. But if you are a test series student here, you can contact Prashant. They can forward some copies and I can have a look on few questions. Share toppers copy for PSIR. Ma'am, we are going to share very soon. System, वो जैसे ही recover होगा, we will be able to do that. Tips for good structuring of the answer. Tips है, you understand the question. You should have sufficient consent. You should be a man of ideas. You should know how to present yourself rather than just dump your information. And this will come when you will write and you will get a constant guidance from the person who knows. Fine. Regarding examples, how to relate them in positive and negative manner. Negative manner की जरूरत नहीं है. आप positive मतलब don't do something unnecessarily depending on the question. Can we write answers in affiliate centers and submit hard copies for exams feel? Rahul जरा इनको answer अंकुश को बता दो. I am not qualifying prelims. Am I supposed to do test series properly or should I start comprehensive? सारे लोग जो comprehensive preparation करते हैं
उनके लिए मेरा यही एडवाइस है, और ये एडवाइस मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कभी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन होने वाला नहीं है। यूपीएससी का क्या बेस्ट तरीका है ये कभी तू एज अ स्टूडेंट समझ में आएगा, जैसे कभी आएगा ही नहीं। तो कॉम्प्रिहेंसिव आप किसको कहते हैं जब आपको समझ ही नहीं कि कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन क्या होता है, और सिस्टम क्या है, एक के बाद एक उसको आपको करते जाना है। Ma'am, like PCR which I am getting through, what about these kinds of PDFs for GS? GS में अलग अलग टीचर्स का अलग अलग अप्रोच रहेगा। मोस्टली जो टीचर्स हैं आंसर्स के साथ ही चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे। So I think that's all for today. What I meant to ask, or whether it is written, critically analyze, elucidate in all questions, we have to end up with our opinion. हाँ, आपको अपना समझ लिखना ही पड़ेगा, ठीक है? Fine. So thank you all of you. I hope this discussion has helped. ये जो collection है ये वाला critically evaluate और ये सब, I will upload it. You can have a look on it. Fine. So thank you. Fine. तो बस यही समझना है कि ये वाला अटेम्प्ट को जाने नहीं देना है, फिर से उस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है प्रीलिम्स के और इन सारी चीजों के। और आंसर राइटिंग काफी कुछ साइकोलॉजिकल है, थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, ठीक है? तो गालिब का क्या शेर है, ये तो क्या सुनव्वर है बहुत अच्छे अच्छे, बट गालिब का अंदाजे बयां, गालिब तुम्हें क्यों पसंद है? क्योंकि गालिब का अंदाजे बयां ही कुछ और है। तो वो कुछ और अंदाजे बयां तुम्हें अपने आंसर में लाओ, जिससे कि एग्जामिनर, क्या होता है एक टॉपर कोई चीज इनोवेट करता है, अगले साल सारे लोग फिर उसी को डुप्लीकेट कर देते हैं, फिर वो एग्जामिनर बोर हो जाता है। तो इनोवेशन होना चाहिए, तुम्हारा अपना इनोवेशन होना चाहिए, ठीक है? चलो, दैट्स ऑल, थैंक यू। Thank you everyone. Thank you ma'am. Thank you for very productive session ma'am. I am also preparing my current affairs notes. You can have a look, you can watch, you can go to my teacher's page and download it. So thank you all of you. Thank you ma'am. I will also make a session for PSIR. Thank you ma'am.